Yeah, I mean, this was part of a whole round of repression that activists have faced in the region since late last year. The kind of activists that I'm talking about are both local activists as well as activists from outside. Uh, this included local activists like Soni Sori. It included activists of the Communist Party of India and mass-based organizations linked with the Communist Party of India. That is all ये आदिवासी महासभा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन. तो उनके साथ साथ में हमारे जैसे जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग वहाँ पे एक प्रोफेशनल्स की तरह हम काम कर रहे हैं. तो उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर्स हैं और उसमें मेरे जैसे व्यक्ति जो एकेडमिक और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है. तो ये हुआ ये था कि ये अक्टूबर एंड में ये 3 बड़े रेप्स की ये घटना एक गांव से उठाई गई थी और उसका फिर हम लोग ने एफआईआर भी दर्ज किया था. और 3 महीने के अंदर जहां हमारी अपेक्षा होगी कि वहां चार्जशीट हो और जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए, उसके बदले हम वहाँ पे ये देखते हैं कि 3 महीने के अंदर ही फिर से उसी थाना में, ये बासागुड़ा थाना में, बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना में फिर से एक और रेप की घटना वहाँ पे घटती है. और जो पहले अगर 3 थे तो इस बार 13 रेप्स की वहाँ पे घटना हुई. दिस इज़ वेरी सीरियस बिकॉज sexual violence has been used as a weapon of war the world over. It has been used as a weapon of war in our country also, in situations where there are ongoing serious conflicts, जैसे कश्मीर में जो चल रहा है या मणिपुर नागालैंड में जो कुछ चला. तो ये मतलब पूरे देश में ये होता आया है. तो सब अगर हमारी डेमोक्रेसी अगर मैच्योर होनी है तो हम लोग एक सिटीजन्स की तरह हम लोग चाहेंगे कि ये सभी चीज़ों पर अंकुश हो. मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, उसके रीजंस भी हैं, मगर उसके पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलने चाहिए, ना कि औरत का शरीर एक युद्ध का मैदान बनाया जाए. इस प्रकार की भद्दी डेमोक्रेसी हम लोग को नहीं चाहिए. जो एफआईआर फाइल हुआ ये एक टीम एफर्ट था. मैं टीम की सदस्य होने के कारण और मैं वहीं पे बस्तर की रहवासी होने के कारण, लोकल व्यक्ति होने के कारण, ऑन बिहाफ ऑफ द टीम आई वाज द कंप्लेनेंट इन द फर्स्ट केस. बट ऑल द टाइम हम लोग पर ये आ रहा था कि यू ऑल फैब्रिकेट केसेस. हाँ, जबकि वो जेन्युइन केसेस थे. उनका तो खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद उनके टेस्टिमनी सुने थे. कन्विंस होने के बाद ही उन्होंने आदेश दिया था एसडीएम को एंड ऑल दैट को कि आप यू कैन दैट द एफआईआर शुड बी. बट येट दिस was coming against us that you have fabricated these cases. So second time round the FIR was filed by the victim women themselves. Now besides the rape as an atrocity, besides the rape cases, like all of last year, I have been working as an independent human rights activist and I have been pitching in wherever it was required with the effort, with the investigation into cases. A lot of cases of fake encounters, for example, in Dantewada district, where I was working along with Soni Sori, Lingaram Kodopi, and many other activists in that region, along with just helping wherever help was required by other friends who are working in different capacities. So I think it is that kind of a cumulative kind of a thing, and at a point where they don't want witnesses. They don't want people who are, speaking out. So in some ways, I think I see whatever happened to me as just an attempt at silencing me and as part of a very, a larger kind of a story. He took the charge, I think, in mid-2014 and since then, we have really seen an increase in fake encounters. We have seen an increase in these kind of very clear-cut ways of silencing journalists. And there are many instances of this kind since then.
पिछले 10 सालों में अगर आप ये सरेंडर के केसेस देखेंगे, सो एट अ वेरी रफ लेवल आई एम टेलिंग यू, आई थिंक दे वर समथिंग लाइक 269 और 59 सरेंडर्स. सो उसके बाद तुरंत लाइक इन 1 year, like if you'll see the 2014-15 figure or 2015-16 figure, like you find that same number is 3 times more, roughly I'm telling. So it's this kind of a sudden difference. 10 साल में जो था वो आपको 1 साल में 2 साल में अब आपको दिख रहा है. The number of people who have been arbitrarily arrested has gone up like crazy. जैसे अभी last 6 months में ही अगर हम देखें 2015 के last 6 months में, so more than 600-700 people were arrested. And further, I mean, most of them in fact they don't have any prior kind of cases on them, Naxal related cases. But these are actually people who are arrested and put into prison. मगर बस्तर के ये जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट एरिया के गाँव में अगर आप देखें कि उनकी क्या स्थिति है, तो पूरे के पूरा एरिया ही एक तरह के बड़े जेल में ही रह रहा है. क्योंकि जेल में रहना का मतलब क्या होता है कि आप एक लाइफ कंप्लीट अनफ्रीडम का लाइफ जी रहे हैं. आप एक डर खौफ के साथ में जी रहे हैं. कभी भी आपके साथ में कुछ भी हो सकता है. कभी भी आपके बेटे के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपके किसी संबंधी के साथ कुछ भी हो सकता है. तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूँ, कुन्ना में जब हम गए ये सेक्शुअल असॉल्ट का हम इंक्वायरी करने के लिए, तो एंड दे स्पीक सो क्वाइटली एंड एंड सडनली वी गेट टू नो that during that same period, जब हम we were talking about what happened regarding the sexual, and then we get to know that actually there was in a nearby para somebody called Lalu Sodi, who was a 21-year-old youth. वो अपने खेत में खेती कर रहा था. वहाँ पे फोर्सेस ने उसको सराउंड किया और उसको इतना मारा. सी फिजिकल बीटिंग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. वहाँ पे आपको जब भी ये सब होता है ना, गश्त होता है, गश्त मीनिंग कॉम्बिंग ऑपरेशंस, beatings are a part of it. I mean, if immediately you go, people will show you their bruises. I mean, this is a very, very common thing. But in this case, for example, Lalu Sodi was beaten to such an extent that in the evening when he came back home, he was not in a situation to drink water or eat or even swallow some gruel. पेज बोलते हैं वहाँ पे, वो चावल का बनता है ग्रूअल, उतना भी वो swallow नहीं कर पा रहा था और दूसरे दिन वो मर गया. एंड द फैमिली वहाँ पे इस तरह के हालात हैं कि पीपल एंड स्पेशली व्हेन द पुलिस एंड द फोर्सेस आर टुगेदर इन दिस होल थिंग, देयर इज अ कंप्लीट नेक्सस बिटवीन द, सो दे डोंट सी द पुलिस एज डिफरेंट दैन द सिक्योरिटी फोर्सेस. सो देयरफॉर दे डोंट थिंक ऑफ गोइंग टू द थाना एंड लॉजिंग कंप्लेंट्स. उसी तरह ये जो फेक एनकाउंटर्स का अगर मैं कहूँ, अगेन वेरी रफ फिगर, बट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, लाइक आई थिंक सिंस November, after November, I think between November and Jan or Feb, something like 56 encounter killings have happened. Now, even as activists, we have not, I mean, the ones we have been able to investigate are very, very few. अभी सामाजिक एकता मंच के डिसोल्यूशन से हम बहुत उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि स्थिति बदलेगी, क्योंकि स्थिति तब बदलेगी अगर उनको सचमुच रियलाइज़ हो कि जो कुछ भी वो कर रहे थे उसका अधिकांश अंश अनडेमोक्रेटिक था और दूसरों को प्रेशराइज कर रहा था या दूसरों के डेमोक्रेटिक राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा था. आई वुड लाइक टू अंडरलाइन दिस फैक्ट दैट वॉट एवर वी हैव सफर्ड, इवन दो पर्सनली इट हैज़ बीन ट्रबलिंग टू अस, बट इट इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल in comparison to what the ordinary citizen of Bastar in these conflict-torn districts has been suffering for years. Practically, it's like, one big jail, like it's living under siege, and there is a complete state of unfreedom, and people are living under fear. Often what happens is that their stories about how they are coping in their everyday lives, the everyday kind of threats that they have to face, how somehow they try to, balance, and try to continue to still survive. So not only the stories of these people, जिनका suffering का मतलब magnitude हमारे से whatever हमने सफ़र किया है उससे कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है. मतलब वो बहुत अलग स्केल का है और बहुत दुखद है.
उसके साथ साथ ही जो लोकल आदिवासी कार्यकर्ता हैं उनकी भी कहानियाँ बाहर नहीं आती हैं। मैं मीडिया के लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगी कि यू हैव टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप, you have to try to really go to these areas and meet these people and get their stories first hand. मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वहाँ पे जितनी भी मेरी स्थिति, मेरी ताकत है, मैं कैसे तैसे वहाँ बनी रहूँ और जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं करूँ। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि सभी जो भी वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक ग्रुप्स हैं, हम लोग सब मिलकर एक साथ आएँ और हम मिलकर एक साथ सोचें कि हम आगे कैसे बढ़ें। हाँ, और हमारे दूसरे जगह में बहुत साथी लोग हैं, अभी भी जहाँ पे भी हम लोग सभी लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं, ये पूरी बातें रख रहे हैं, हर एक जगह से हमको बहुत साथ मिल रहा है। तो इन सभी के साथ हम बस्तर में कोशिश करेंगे कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ते रहें।